जी, द साइंटिफिक मेथड, हिबातुल वर्दा करें स्टार्ट। Okay, so scientific method. So basically, our first question is, what is knowledge? What are the ways? The answer to this question is experience. We learn most of the things through our experience. We experience things and we learn about the new things. And the example of it is when a child touches a hot pot, he learns about that hot things always hurts. Another way, moving forward, another way to know about something or learn about something is through thinking and through reasoning. So reasoning can be defined as the use of logical. One is inductive reasoning, and the second one is deductive reasoning. Inductive reasoning involves using specific ideas to reach a broader conclusion, and deductive reasoning uses general ideas to reach a specific conclusion, and it is a reverse process. आपकी दरमियान में ना आवाज़ कट जाती है हिबातुल वर्दा, शायद मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन ये कि आपको डिस्टॉर्शन आ जाती है। Moving forward, people commonly use experience, authority, inductive reasoning to learn new things and draw conclusions from it. But on signal problems, signal people commonly and to draw conclusions. Hello, can you hear me? Hello. जी, जी, आ रही है आवाज़। यस। Now, हमारी आवाज. Hello. आ Can रही you है hear आवाज me? हिबा? आ रही है अब आ आवाज़ रही है, ठीक हिबा। है. People commonly use experience, authority, inductive reasoning, and deductive reasoning to learn about new things and also draw conclusions from it. But here the limitation is this: that if these all things are used in isolation, there are few limitations and there are few problems for it. Here the example of it is that Aristotle took a fly and counted and recounted its legs. When he counted the legs, there are 5 legs. One leg is missing, and for years people believed that the flies have 5 legs. But after a few years, people came to know that fly have 6 legs instead of 5 legs. So experience, authority, and deductive reasons are very effective when used together. So basically, in scientific method, these all steps are combined together to find out the solution of a problem. Scientific method is an orderly sequence process, including a number of steps. There are a number of steps in scientific method. The first step is recognition and definition of a problem, formation of hypothesis, collection of data, analysis of data, statement of conclusion. These steps can be applied to solve everyday problems. So now the limitations of the scientific method. Scientific method cannot answer all the questions. Scientific method is a way to find out the solutions of a problem, but scientific method at the same time cannot answer all the questions. For example, here the question is, should we legalize euthanasia? Application of the science. Number second limitations of this is application of the scientific method can never capture the full richness of the individuals and the environment under study. Because the individual's behavior can never be the same, and the environment and the circumstances can also never be the same. Third, our measuring instrument always have some degree of error. Application of scientific method in education. How can we apply scientific method in our education system? So
Scientific method is a model that will help you understand and teach the methods of science. It is very helpful for the science teachers to help students learn about the science. Scientific solutions of a problem, to find the scientific solutions of the problem by using scientific method. It develops problem solving skills in the students, and it also helps students to learn how we can find the solution of a problem by solving all the steps of a problem. It is the most easiest way to find the problem of a solution. Thank you so much. नेक्स्ट इज़ माई पार्ट विच इज़ डिफरेंट अप्रोचेज टू एजुकेशनल रिसर्च। इसके अंदर मेनली डिस्कस ये किया गया है कि हर एजुकेशनल सिस्टम में एक इंक्वायरी किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसके अंदर रिसर्च की जाए और किसी कंक्लूजन पे इंटरप्रिटेशन की जाए और कंक्लूजन पे आया जाए। आगे ये डिस्कस किया गया है कि हिस्टोरिकली एजुकेशनल रिसर्चर्स यूज्ड अप्रोचेस दैट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। सो देयर वर 3 क्वेश्चंस जो कि एक रिसर्चर को मद्देनज़र रख के अपनी रिसर्च आगे कैरी ऑन करनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फिलोसफिकल असम्पशन शुड बी रिलेटेड टू द नेचर ऑफ रियलिटी। रियलिटी बेस्ड उसकी होनी चाहिए असम्पशन जिसके ऊपर भी वो रिसर्च करना चाह रहे हैं। हाउ रिसर्चर्स नो व्हाट दे नो। रिसर्चर को ये बात किस तरह से पता है कि जिस चीज़ के ऊपर वो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसके बारे में उसको आइडिया है और किस तरह से आइडिया है। एंड द मेथड यूज्ड टू स्टडी अ पर्टिकुलर फिनोमेना। जिस मेथड से वो अपनी रिसर्च कैरी ऑन कर रहा है वो कौन से मेथड्स हैं जो वो चूज़ कर रहा है। तो आगे उन्होंने बताया हुआ क्वालिटेटिव रिसर्च और दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अबाउट is the collection and analysis of numerical data statistics to describe क्वांटिटेटिव में उसके नेम से पता चल रहा है हमें कि क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो क्वांटिटेटिव डाटा में या रिसर्च के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, स्टैटिक्स होते हैं, परसेंटेजेस के अंदर आता है या हम ग्राफ्स उसके अंदर ज़्यादा शो करते हैं, नंबर्स के थ्रू अपना जो रिसर्च है उसको शो करते हैं या टेबल्स यूज़ करते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है? सुन रहे हैं। इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च है हमारे पास। इट डील्स विद वर्ड्स एंड मीनिंग्स। इट अलाउज टू एक्सप्लोर आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन डेप्थ, फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी, एनालाइज बाय समराइजिंग, कैरेक्टराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। मीन्स कि इसके अंदर हम लोग इन डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं थ्रू रीडिंग, या हम अपनी इंटरेक्शन करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं, समराइज करते हैं अपने क्वेश्चन को या अपने आंसर को जो भी हमारी रिसर्च होगी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, मेनली एक्सप्रेस इन वर्ड्स होता है सारा। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ऑफन अवॉइड स्टेटिंग हाइपोथेसिस बिफोर डाटा इज कलेक्टेड और विदाउट एनी आइडिया। अगर रिसर्चर के पास कोई डाटा, मेनली कोई प्रॉपर कलेक्टेड डाटा नहीं होगा, उससे पहले वो कोई भी अपना आंसर या कोई भी चीज़, अपना मुद्दा, अपना बयान नहीं कर सकता। डाटा कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर। रिसर्चर जो भी डाटा कलेक्ट करेगा उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, ना ही वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जो भी है एज इट इज़ उसको उसी के साथ रेफरेंस दे के कंपेयर करके अपना जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करना होगा। इट नीड्स कलेक्शन ऑफ डाटा लाइक इंटरव्यूज, बुक्स, आर्टिकल्स, विजुअल डाटा। इसके अंदर हम लोग बुक्स से, आर्टिकल से या विजुअल डाटा किसी भी किस्म का वेब से लेके या बुक से लेके हम लोग उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। While quantitative usually test a specific hypothesis, while qualitative research does not. Quantitative के अंदर hypothesis specific, quantitative specific hypothesis को टेस्ट करता है, while qualitative जो है वो उसके अंदर ये सब कुछ नहीं होता। और क्वालिटेटिव के अंदर इंटरेक्शन जो वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अजीज़ा, आप अपना माइक म्यूट कर लो। मैं कोशिश कर रही हूँ तो मेरे से आपका म्यूट नहीं हो रहा और आवाज़ आ रही है। जी, कंटिन्यू हिबा। मैम हो गया, ओवरऑल सारा बता दिया मैंने। हिबा, मेरा भी स्टार्ट कर दो स्क्रीन शेयर वहाँ से, क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये लो। जी, कंटिन्यू।
जी क्या हो रहा है, मुझे नहीं आवाज आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे भी नहीं आ रही, शायद हंसा बोल ही नहीं रही है। मैं कब से बोल रही हूँ और मेरा माइक म्यूट था। चलें दोबारा से शुरू करें, कोई बात नहीं। मैं फिर शुरू करती हूँ, सॉरी। Okay, first part is classification of research by method, in which collecting and analyzing data. Largest distinction we can clarify in research is question and answer method, is the one quantitative or qualitative method. These include several types of methods. Each of every research is designed with different parts of research questions. The first one is quantitative research. Collecting or analyzing numerical data is quantitative research. It describes survey questions, conditions, investigation, relationship, and study cause and effect. Investigate the relationship between two or more variables is survey research. It is a quantitative approach. We carefully collect samples. It is a flexible approach. It is a study of wide range of varieties. And secondly, it approaches research large amount collection of data. Numerical data to test hypotheses or question answers about current, static, or subject. The other thing we use to survey quantitative research is questionnaires, interviews, and observations. Taking participation, failure to return questionnaires. The false part about weakness of about quantitative research is the weakness of the participants who are filling the questionnaires. In survey method, there's the question answers, the numerical data are collected through observations and interviews, and also through questionnaires. The other thing is correlational research. The second research is correlational research. Correlation. It is a type of non-experimental research method in which we measure two variables. It checks the relationship of two or more variables. जो हम दो variables को study कर रहे होते हैं, इनका relationship found out, ये correlational research करती है. It checks the relationship of two or more variable. A variable is anything: intelligence, height, measures, quantities, etc. Correlational research requires information about at least two variables obtained from single group of people. In correlation research, we have to find about two variables. The research with two variables are known as correlational research. The aim to identify correlational research is variables that have some sort of relationships. The relationship is very important in correlational research. It is a quantitative method. The questions are relationship between pairs. The other part is the last research is causal comparative. In causal comparative, we used to find a relationship dependent and independent variable. After an active research, it will find the cause and effect of different research that are find out the change and differences in a behavior that is dependent. Causal comparative research attempt to establish cause and effect relationship among group or people. The one disadvantage or weaknesses we can say is because we can't change the result of causal comparative. We have to find out the relationship in causal comparative result in the given situation. Is that because we study under the already occurred result that our researchers have, and in this the research is not in control of the researcher. यानी कि हम ये नहीं कर सकते, we cannot change the result, we cannot change the relationship. There is already a cause and effect relationship between two variables. Yes, ma'am. इसमें हम अपनी researcher वाला जो है हाँ वो डिपेंडेंट पे डाल रहा है. बिल्कुल कंट्रोल, यानी हम इसमें कोई इंटरवेंशन या अपनी तरफ से किसी किस्म का कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन आइडेंटिफाई कि किस चीज का कॉज किस चीज पे हो रहा है, इफेक्ट किस पे हो रहा है. Yes, ma'am. Exactly. Yes, ma'am. हम बस यहाँ तक समझे. ओके, एक दो एग्जांपल्स आगे बोल देनी थी, ज़रा क्लैरिटी हो जाती. सो किस किस्म की रिलेशनशिप्स खासतौर पे एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम देख सकें तो हम किसी ना किसी, जिस तरह टीचिंग मेथडोलॉजी की हम देख सकते हैं कि उसका असर जो है वो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे कैसे हो रहा है. ये इन्होंने क्या कहा, यहाँ एग्जांपल थी वो स्मोकर की थी कि एक स्मोकर के लंग्स को कैंसर है, तो हम उसके यानी कि हम उसका रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते. वो स्मोक करता है, हम उसकी आदत को नहीं रोक सकते. हाँ. और जो उसको कैंसर आया हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसको स्टडी कर सकते हैं कि कैसे हुआ, ऐसे हुआ. जी. और यहाँ पे जिस तरह नीचे
एग्जाम्पल में ये था। स्कूल अटेंडेंस अफेक्ट सोशल मैच्योरिटी। अब प्री स्कूल में जाना बच्चे का, वो उसकी सोशल मैच्योरिटी पे कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। नीचे है हाउ डज हैविंग अ वर्किंग मदर अफेक्ट अ चाइल्ड स्कूल एब्सेंटीज़म, कि बच्चे स्कूल में जो रेगुलर नहीं जा सकते, तो हाउ डज दैट इज दैट अफेक्टेड बाय द मदर वर्किंग। तो ये इस तरह की चीज़ें, यानी एग्जिस्टिंग जो भी फिनोमिना, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को हम जब स्टडी करते हैं तो कॉल्स कंपैरेटिव। ठीक हो गया। नेक्स्ट कौन है? अजीज़ा है नेक्स्ट। अजीज़ा आई थिंक हैज़ लेफ्ट, सो वानिया आप करें अपना पार्ट प्रेजेंट। सो अब तक ये कि जितना बाकी लोगों ने शेयर किया, दिस इज़ वेरी जनरल एंड वेरी बेसिक, तो इसकी समझ आई है बेसिकली? कोई इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो भी पूछ लें। मैम आ गई समझ ऐसे नो तो। मैम समझ आ गई है। हाँ, तो दिस वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा अजीज़ा है? नहीं, अच्छा वानिया बोलिए। ठीक है वानिया, आप अपना पार्ट करें प्लीज़। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। नहीं वो तो अजीज़ा का था ना। जो है द क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, पेज नंबर 15। ये गुजर गया। नहीं बेटा आगे, ये रुताबा का पोर्शन था। सो दिस पार्ट, जी शुरू करें। अच्छा, द क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में बेसिकली जो है द माइनर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस बताया है। इनके जो है the steps differs depending on the type of research conducted, and कि अगर qualitative research जो है वो अगर qualitative research conduct की जा रही है तो उसके steps ज़्यादा थोड़े less rigid होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो है statistical data जो है वो कम होता है। उसके अंदर क्वालिटेटिव यानी टेक्स्ट एनालिसिस और जो है थोड़ा सा नीचे करो इसको। ये नीचे ले जाओ, ये जो फिगर है ना ये दिखाओ। जी अब जैसे कि ये इसमें जो है डायरेक्ट कंपैरिजन है और जो है वो बेसिक उनका डिफरेंस बताया हुआ है, यानी आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो क्वांटिटेटिव में डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ओरिएंटेड होगा जो भी यानी कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन क्वालिटेटिव में हम एक्सप्लोरेटरी या फिर अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड होगा, यानी कि जो भी रिसर्च असल में यहाँ पे एक शुरू में इन दोनों अप्रोचेस का जो एक मेन डिफरेंस अपने जहन में बिठा लें कि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या करते हैं, कोई ना कोई थ्योरी को सच मान लेते हैं कि हाँ ये थ्योरी या ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, अब इसकी बेस पे हम लोगों ने कोई डेटा एक्वायर करना है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें डेटा मिलता है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं या हम उस थ्योरी की रोशनी में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई हमने नेचुरली अकरिंग जो चीज़ें हैं उनको ऑब्जर्व या उनको नोट या उनको इन्वेस्टिगेट करना है, और हम बेसिकली किसी थ्योरी को फॉलो नहीं करते। हम कहते हैं पहले हम डेटा देखेंगे, उससे हम इंटरप्रिटेशंस निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ से कोई थ्योरी जनरेट होती है या किस थ्योरी को ये कैटर कर रहा है। तो हम यानी रियलिटी को, क्वालिटी ऑफ द एक्सपीरियंस को हम एक्सप्लोर करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना और थ्योरी है, क्वांटिटेटिव में चूंकि थ्योरी शुरू हम थ्योरी से करते हैं तो इसलिए इसका मेजर रोल है, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि किसी थ्योरी की वजह से हम लोग बाउंड हो जाएं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम थ्योरी करते ज़रूर हैं लिटरेचर रिव्यू, लेकिन थ्योरी का माइनर रोल होता है। तो और फिर हम जो उसमें से क्वांटिटेटिव जो लेफ्ट साइड पे उसमें मेजर रोल जब हम लेते हैं, वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हमें थ्योरी के ज़रिए पता चल जाए कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करनी है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम,
और हम बिल्कुल एग्जैक्टली हमें पता हो कि हमने डेटा किस तरह से कलेक्ट करना है, हर चीज़ हमारी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए स्पेसिफिक हो, फिर हम फॉलो करें और फिर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू उसको शो कर दें। तो ये पूरा क्वांटिटेटिव का प्रोसेस है। लेकिन हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च में से लेते हैं जस्टिफिकेशन फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम, तो हम इतनी सी बात कर देते हैं कि बहुत ब्रॉड वे में किस तरह से ये रिसर्च प्रॉब्लम पहले से डिफाइंड है, लेकिन हम पूरी स्टडी को बिल्कुल बाउंड नहीं कर देते हैं, हम उसको ओपन एंड एक्सप्लोरेटरी रहने देते हैं। अब इससे आगे बानिया आप इसी तरह से समझाओ। तो यानी यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च आप लोग अडॉप्ट करें, ख़ासतौर पे ELT में, तो उसके पीछे एक पर्सपेक्टिव और एक मकसद और एक पर्पस होता है। उसको आप लोगों ने जहन में रख के शुरू से आखिर तक उस रिसर्च में वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जी, तो इसी बेस पे अब सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट की तरफ चलें। जी वानिया, कंटिन्यू। Selection participant and wait. यहाँ पे ही हो अभी? नहीं, अभी मैं फिगर ही एक्सप्लेन कर रही थी। फिगर पे जाओ। हाँ, फिगर आ गया, थोड़ा सा ऊपर चलें, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहाँ से सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट्स और सैंपल। यानी कि जो मिस ने बोला है कि जो है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो जो है मोस्टली जनरल होती है और एक्सप्लोरेशन होती है इन द नेचुरल सेटिंग। जो क्वांटिटेटिव होती है वो जो है वो कंट्रोल सेटिंग में जो है अगर करती है। यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च अगर हमने करनी है तो उसमें हम पार्टिसिपेंट सेटिंग्स वगैरह हर चीज कंट्रोल करेंगे। इसीलिए जब हम पार्टिसिपेंट्स या सैंपल्स कलेक्ट करते हैं तो क्वालिटेटिव में मोस्टली जनरल होता है, ब्रॉड होता है, और हम पार्टिसिपेंट्स के एक्सपीरियंस को जो है यानी कि एज अ डाटा लेते हैं। बट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वो बिल्कुल स्पेसिफिक और नैरो हो जाता है और मेजरेबल जो है डाटा हम लेते हैं। यानी कि अगर जैसे ELT का ले लिया और हम क्वांटिटेटिवली एक यानी कि समझ लो उस पर जो है रिसर्च कर रहे हैं कि गेम बेस्ड एक्टिविटी का कितना जो है वो प्रोडक्शन होती है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स पे। तो इफ अगर हम उसे जो है एज अ क्वालिटेटिव जो है रिसर्च उस पर कंडक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा यानी कि हम लोग जनरली सब क्लासेस को जो है वो इंक्लूड करेंगे और ब्रॉडर सेंस में जो है उसके यानी कि सारा डाटा कलेक्ट करेंगे और पार्टिसिपेंट्स यानी स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस लेंगे। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो वी विल हैव अ कंट्रोल सेटिंग, यानी कि क्लास A, क्लास B, क्लास C इस तरह होगा। और जो है यानी कि बिल्कुल मेजरेबल डाटा होगा, यानी कि स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो कंट्रोल्ड होंगे। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं इस क्लास में और दूसरी क्लास में भी इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही होंगे। और यानी कि हर स्टूडेंट का हम लोग डाटा ऑब्जर्व कर सकेंगे, उनका जो है यानी पार्टिसिपेशन वगैरह सब कुछ ऑब्जर्वेबल होगा। ओके, कलेक्टिंग डाटा। So emerging protocol, text or image data, small number of individuals or sites. और predetermined instruments, बेसिकली जो है कलेक्टिंग, जब हम डाटा कलेक्ट करने लगते हैं तो फिर क्वालिटेटिव मेथड में हम लोग ये देखेंगे कि जो है साथ साथ अगर नया ही जो है हम लोग प्रोटोकॉल्स या फिर टूल्स या फिर इवन अ थ्योरी अगर हमें जो है वो न्यूज़ नजर आए देन वी कैन यूज इट। लेकिन इन क्वांटिटेटिव जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया दैट एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड, सो प्री डिटर्मिन्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आप नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं कर सकते। द न्यूमेरिक नंबर या मेथड या फिर जो भी, यानी कि यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन ना पैदा कर लें कि आप ये कर सकते हैं कि डेटा कलेक्शन शुरू करने से पहले
कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके उसको वैलिडेट करके चेक करके पायलट टेस्टिंग वगैरह करके उसको अप्लाई करें। लेकिन जब आपका एक दफ़ा डेटा कलेक्शन स्टार्ट होगी ना, तो फिर आप अपने मेथड को या अपने टूल को नहीं बदलते, फिर आप यू स्टिक टू इट। फिर उसको आप कंप्लीट करके उसका एनालिसिस करके हाँ रिकमेंडेशंस में आप दे सकते हो कि शायद कोई दरमियान में तब्दीली करने से किसी और तरह का फ़ायदा हो जाता। लेकिन क्वालिटेटिव में आपने जिस तरह से एक बेसिक इंटरव्यू प्रोटोकॉल डेवलप कर लिया या कोई प्रॉम्प्ट डेवलप कर लिए, नोट्स वगैरह डेवलप कर लिए अपने कि भाई मैं इसके थ्रू कोई ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ या मैंने इंटरव्यूज़ करने हैं या मैंने डॉक्यूमेंट एनालिसिस ऐसे करना है, आप उसको दरमियान में मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज द डेटा कलेक्टेड shows you that these different things are possible। तो कई दफ़ा आपके पास एक दो सवालों का जवाब आता है तो आपको लगता है कि अच्छा इसमें इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मेथड को थोड़ा बहुत इधर उधर लेके जा सकते हो। शायद कभी इंटरव्यू डेटा के साथ साथ आपको लगे कि अच्छा इंटरव्यू डेटा के साथ मुझे इनकी ये चीज़ भी चेक कर लेनी चाहिए। तो यानी क्वालिटेटिव इज़ मोर ओपन लाइक दैट, लेकिन उसमें जो आपको बाइंड करेगी चीज़ वो आपका पर्पज़ होगा कि आपने डेटा वही कलेक्ट करना है कि जो किसी ना किसी तरह से आपके रिसर्च क्वेश्चन की तरफ कंट्रीब्यूट करे, लेकिन उसमें रिजिडिटी बहुत नहीं होती। ओके, तो ये इसमें यहाँ पे जो है ना कि आप इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर सकते हो क्वांटिटेटिव का, ये नहीं कि आपको दूसरा ही यूज़ करो, मगर जब आप एक दफ़ा सेट कर लो तो फिर आपको उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं करनी, फिर सबका एक ही तरह का होगा। जी जी वानियो कंटिन्यू। interpreting data। तो इसमें जो यानी कि सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों में आ जाता है वो यही है कि क्वालिटेटिव में जो है हम टेक्स्ट एनालिसिस थीमेटिक जो डेवलपमेंट हो रही है वो एनालिसिस करते हैं या बेसिकली लार्ज वो हम जो है डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव है उसमें हम हमारी जो है न्यूमेरिकल होगी एनालिसिस, हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगा और कंपैरिजन होगा ग्रुप्स के बीच में, जो हमने ग्रुप सेट किए होंगे उनके रिलेशनशिप और वेरिएबल्स उनके बीच में जो है कंपैरिजन होगा बकायदा, और फिर जो रिजल्ट निकलेंगे उनका भी कंपैरिजन होगा, जिसकी वजह से फिर हम लोग जो है पास्ट स्टडीज वगैरह आगे फ्यूचर के लिए भी हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं अपने जो है यानी कि कंक्लूजन में, और जो है पास्ट स्टडीज से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि जैसे पास्ट स्टडीज भी जो है वो ठीक थी कि गलत थी। ओके, रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिसर्च, थोड़ा सा नीचे जाओ फिगर पे, फिगर के जो है ना आखिर पे चल रहा है। हाँ अच्छा, रिपोर्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिसर्च यानी कि बेसिकली अगर हम रिसर्च को फिर देखेंगे तो कंक्लूजन वगैरह ये सब कुछ फ्लेक्सिबल होगा और जो है बाइस्ड होगा थोड़ा सा, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग जो है एक रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे होंगे और क्वालिटेटिव मेथड में हम थोड़ा सा जो है यानी कि बाइस्ड हो जाएंगे उसके जो है प्रॉब्लम के हक में। लेकिन जब क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी तो इट वुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड फिक्स्ड, ऑब्जेक्टिव होगी बिल्कुल और अनबाइस्ड होगी। इफ द नंबर्स आर नॉट सपोर्टिंग the problem, the research problem, then we have to share that the research problem is not being supported with statistical data। अच्छा, जो है यही था, नीचे चलो, नीचे जाना। सो ये आगे उन्होंने स्टेप्स दिए हैं ना। हाँ ओके, basically how do you begin the research process? You identify research topic, फिर आप देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर में क्या है, फिर उस लिटरेचर के थ्रू ही आपको पता चलता है कि आपने पार्टिसिपेंट्स किस तरह के लेने हैं, फिर आप सिलेक्ट करते हैं, then you collect data, you analyze and then you report it। These are the very basic steps। ओके चलें, जितनी बात हमने की वो उतनी आपको इसमें से कोई अगर सवाल हैं या कुछ समझ नहीं आई तो वो बताएं। इन्हीं चीज़ों को हमने अब रिसर्च में इन डेप्थ भी पढ़ना है। अभी ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था,
और मैं आपको नेक्स्ट अब जो रीडिंग है वो मैं असाइन करती हूँ, और फिर उसमें जब ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएंगी हमारी रिकॉर्डिंग्स, वो भी ज़रूर सुने आप, अजीज़ा का और रुताबा का पार्ट। और फिर नेक्स्ट चैप्टर की जो है ना मैं आपको रीडिंग देती हूँ और फिर हम उसको समझेंगे। तो उसको भी इसी तरह से आप डिवाइड कर लीजिएगा और उसकी डिस्कशन करते जाएंगे और उसकी समरी खोल के तो उसमें चीज़ें फिर मैं भी ऐड करती रहूँगी, ठीक है ना? ओके मैम, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूँ? ठीक है जी, स्क्रीन शेयर भी ऑफ कर दे, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ कर देती हूँ।